as I am told. I've been hopeless since I let you go. Cause there's a part of you that gets me through in all I do. If I open my eyes and see you right there, I'll know there's an ending to this nightmare. So where are you? So where are you? So where are you? So where are you? You're the beginning and the end of me. You keep on thinking love is the enemy, but I need you. All of the things I do for your company. Why can't we be more than just some memories? 'Cause I need you. You're the beginning and the end of me. You keep on thinking love is the enemy, but I need you. Feel the cold wind running through my hair. Lamenting lost romances seems to take me there. And I hope you're keeping safe and fair. Cause the distance that's between us is so hard to bear. If I open my eyes and see you right there, I'll know there's an ending to this nightmare. So where are you? So where are you? Good evening, everyone. Just wanted to confirm अगर आप like I am audible and आप देख पा रहे हैं मुझे and वीडियो सुन पा रहे हो, you can write in the chat box, please. Thank you so much. So this is a very important session and मैं चाहूँगा कि like आप और गेस्ट को बुलाइए, इनवाइट कीजिए. Yes, so we'll hear some great leaders today and we'll start in just 5 minutes. हम 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं. Meanwhile, you can just invite some more people from your team. Yes, so हम कैसे आगे बढ़े, कैसे काम कर रहे हैं, we'll know and we'll share the best practices sharing. Yes, so just wait and watch.
Yeah. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Ready to do this. Show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time, my time. None of you people can tell me to stop. You want to be a well-oiled machine, and to do that, you need to be fueling your body with the best of the best. If I don't put the right things into my body, it won't perform when I ask it to. I've worked so hard to get to where I am today, and I'm not about to risk it on a supplement that I don't trust, so I choose So USANA. what are you afraid of? Those feelings are made up. Get in the game, your moment of fame, show them what you made of. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. Why do I take USANA? Because USANA's the best. I know it's clean, I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. You know, that's also a reason why you have so many athletes on USANA. We know what it takes to be reaching the top. Tell me to stop, my town, my crown. We know what it takes to be reaching the top. I trust USANA because I trust USANA. I trust USANA. Trust. I trust USANA because it's safe, it makes me feel good. I don't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products. Just wanted to confirm once more, आप मुझे देख पा रहे and are you able to see the screen? You can write it in the chat box, please. आप chat box में लिख सकते हैं. Yeah, please write in the chat box. Okay. Thank you so much. Thank you so much. And wishing you all a very very happy new year. आपका नया साल बहुत ही शुभ हो, मंगल हो और ये साल बहुत ही अच्छा जाए आपका. एंड मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि 2024 कैसा गया आप लोगों का, 2024 कैसा गया. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. यस. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2025 के लिए आप लोगों ने क्या नया रिजोल्यूशन लिया है कि नहीं. Yes, we are all family. You can just write in the chat box. I want to see the chat box. Yes, great. So हम चाहते हैं कि हम लोगों को और हेल्दी बनाएं और लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा सपना पूरा करें 2025 में. आपने क्या सोचा है? या प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मिलके काम करें एज ए फैमिली. या एक फैमिली की तरह हम मिलके काम करें और हमारा जो मिशन है, यस, 1 लाख हेल्दी होम्स, या एंड टू क्रिएट द हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, ये तब मुमकिन होगा जब हम अपना मिशन विजन को लेके काम करते. एंड ऑफ कोर्स रिजोल्यूशन 2025 का आप रखते, यस, एंड उसके साथ में हम काम करते मिलके. यस. एंड आज का जो सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो दिस इज़ वन ऑफ हिज काइंड एंड ये फर्स्ट एडिशन है फॉर USANA Talks. So this will be a sort of testimonial marathon, and I'll be selecting 3 or 4 leaders each from each region, maybe like ईस्ट से एक, नॉर्थ ईस्ट से एक, साउथ से एक, वेस्ट से एक. सो आज भी हमारे यहाँ काफ़ी बेहतरीन लीडर्स आज हमारे पास में हैं फॉर जो USANA Talks. आज का हमारा मीटिंग है. एंड
प्लीज एक बार जोरदार तालियां से इनका स्वागत कीजिए. सो वी हैव none other than like Ravindra Patel from Ahmedabad. Yeah, so Ravinder sir has shown like to us that age is just a number. Age एक just एक number है. And we have Itika Sud Banta from Punjab. And we have Pratima Parida, of course. Yeah, she is the youngest director. Great. Yeah. So welcome everyone to the board. And आइए शुरुआत करते the Isona Talks, the first edition of Isona Talks. And of course, we'll be selecting every month three or four leaders from each region. So स्वागत है आप लोगों का. एंड हमारे पैनलिस्ट जो कि फर्स्ट पैनलिस्ट है स्पीकर वो है मिस्टर रविंद्र पटेल फ्रॉम अहमदाबाद. सो सर, ओवर टू यू एंड ऑल द बेस्ट. मैं चाहूंगा कि मैंने आपको ऑलरेडी थैंक यू. मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो ऑन कर ले सर. यस सर, मेरा वीडियो ऑन है. आई एम देयर. यस, थैंक यू. ओके सर, ओवर टू यू सर. यस, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है. मेरी आवाज़ आ रही है. हेलो. यस, थैंक यू पंकज जी. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और थैंक यू वेरी मच पंकज जी एंड गुंजन मैम, मुझे पूरी यूसाना फैमिली के साथ आज बात करने का मौका दिया. एंड वेलकम टू ऑल माय यूसाना फैमिली मेंबर्स. आप सभी का स्वागत है. पंकज जी ने मुझे बताया था कि आपको आज बात करनी है पूरे यूसाना फैमिली के साथ और दिल से बात करनी है, तो मैं आज सभी लोगों के साथ दिल से बात करूंगा. मैं रविंद्र पटेल अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं और पिछले 40 साल से मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से कनेक्टेड हूं. मैंने 1982 में मेरा कैरियर स्टार्ट किया था एज ए होलसेलर. ग्रेन्स मर्चेंट था मैं. एंड पूरे इंडिया में मैं सप्लाई करता था ग्रेन्स सारे जितने भी आते हैं मसाले वगैरह. उसके बाद 91 में मैंने सूरत के अंदर अपने पावर लूम्स का बिजनेस का सेटअप किया. 93 में मैं अहमदाबाद आया कुछ वजह से. एंड एज ए फुटवेयर होलसेलर मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया. आप सभी मल्टीनेशनल कंपनी को जानते हैं, एमएनसी को जानते हैं, बाटा इंडिया लिमिटेड. तो बाटा का पूरे गुजरात का सप्लायर था. मोर देन 500 डीलर्स थे मेरे अंडर में. फिनिक्स स्पोर्ट्स शूज आते थे, आपको पता होगा, तो उसका मैं गुजरात का मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था मेरा. राइट. स्टॉक्स में भी मैंने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा, बहुत सारे ट्रेडिंग किए मैंने. लैंड एंड प्रॉपर्टी में भी मैंने काफ़ी ट्रेडिंग की और एक्सपीरियंस किया. राइट. आज मैं काम कर रहा हूँ अहमदाबाद में एज ए रियल एस्टेट बिल्डर. और अहमदाबाद एंड सराउंडिंग पिछले 15 साल से मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने लॉन्च किए हैं. और आज करंटली मेरे 3 प्रोजेक्ट अहमदाबाद एंड सराउंडिंग वर्किंग में है. डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे पिछले 25 ईयर्स से मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्टेड हूं. 99 में मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया था, एक चूज़ किया था साइड में एज ए पार्ट टाइम. और करीब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के साथ मैं कनेक्टेड रहा 2014 तक. मतलब 14 साल फील्ड में मैंने काम किया, बहुत अच्छे लेवल पे काम किया. 2-3 कंपनियों के साथ मैंने काम किया, लेकिन सारे कंपनी में मैंने अच्छे लेवल पे सक्सेस पाई. लेकिन 14 में हुआ ऐसा कि 3 प्रोजेक्ट एक साथ मेरे रियल एस्टेट के आ गए, तो इतना समय मैं नहीं दे पाया. राइट. बीच में आप सब जानते हैं कि जैसे कोविड वगैरह चला 20 उसके करीब, तो सारे बिजनेस स्टॉप हो गए थे. मैं फ्री था, तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि पूरे समय मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो क्यों नहीं ये किताब लिखी जाए. तो एज ए ऑथर द ड्रीम सीकर करके एक किताब है इंग्लिश में, सपनों के साधक एक हिंदी में है, एंड सपनाना साधक वो गुजराती में है. मैंने फ्री टाइम पे मैंने लिखा. मैं प्रोफेशनल राइटर तो नहीं हूँ, फिर भी मैंने उसको पब्लिश किया अमेजोन के ऊपर एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर. ग्लोबली अभी अवेलेबल है. राइट. ये स्टोरी मैंने आप सबको इसलिए बताई कि आपको काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आपका ये बैकग्राउंड है,
इतना सारा एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी चीज़ें की हैं लाइफ के अंदर, तो दोबारा आपने यूसाना बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? राइट, तो मैं आज मेरा जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। टर्निंग पॉइंट आया जब मुझे जाना था यूएस, वीज़ा लेने के लिए दिल्ली जाना था। तो हमारे पुराने जो फ्रेंड्स बोलो, मेंटर बोलो, या हमारे अपलाइन बोलिए पुरानी कंपनी में, मिस्टर रोहित साहनी जी, जिनको आप सब बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक रोड मैप पूरा बनाया है आज हम सब के लिए, राइट, और एक बहुत अच्छी सक्सेस पाई है। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि सर मैं वीज़ा लेने के लिए दिल्ली आ रहा हूं। तो सर ने बोला नहीं, आपको 2 दिन नहीं रुकना है वहां पे, 1 दिन और ज़्यादा रुकना है। तो मैंने बोला ओके। मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझे हो सकता है मोटिवेट करेंगे पुरानी कंपनी में एक्टिव करने के लिए या एग्रेसिवली काम करने के लिए। तो मैंने तय किया था कि एक कान से सुनूंगा, दूसरे कान से मैं निकाल दूंगा। मुझे तो करना नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वापस आना नहीं था। लेकिन जब मेरा वीज़ा हो गया, हम डिनर पे बैठे थे, तब उन्होंने बताया कि एक यूसाना के बारे में मुझे बताया, और इन्होंने बताया कि 2007 से वो यूसाना को फॉलो कर रहे थे। यूसाना ने 2018 में इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं पिछले मेरी कैरियर में इसकी वेट कर रहा था और वो दिन आ गया है, और अभी लॉन्च नहीं हुई है, कंपनी लॉन्च होने वाली है। मैंने बोला होगा कुछ, मैंने तो इतना वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही इन्होंने बताया कि ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इनके फाउंडर जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, तो मैं थोड़ा सा ये सुन के थोड़ा सा अलर्ट हो गया। और मतलब मेरे दिमाग में ये आया कि आज तक जो भी डायरेक्ट सेलिंग के जो पायोनियर्स हैं या फाउंडर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं या की लीडर्स हैं जो सक्सेस पाने के बाद अपनी खुद की कंपनी बनाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का और बिजनेस का क्या लेना देना, राइट? तो मैं तो एकदम अट्रैक्ट हुआ फर्स्ट सेंटेंस से ही। और फिर इन्होंने जो मुझे प्रोफाइल बताया कंपनी का कि आप सभी लोग जानते हैं 32 साल पुरानी कंपनी है, 25 साल में 25 कंट्रीज में ये सक्सेसफुल वर्क कर रही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, बड़े लंबे विजन के साथ इंडिया में आ रही है, राइट? जो भी प्रोडक्शन आता है इनका बनता है वर्ल्ड वाइड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के द्वारा आता है। इनका मिशन है हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, मिशन में काम कर रहे हैं ये लोग। इनका फोकस है वेल्थ नहीं है, हेल्थ है। हेल्थ पे अगर काम करेंगे तो वेल्थ तो ऑटोमेटिक आने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि इनके साथ 150 से ज़्यादा साइंटिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्होंने पूरा, जो आप सब लोगों ने सुना है, इनकी वीडियोस मुझे इन्होंने प्रमोट की, राइट? फिर इन्होंने ये बताया कि सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाले हैं और करोड़ों रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में आ रही है। डेट फ्री कंपनी है, टॉप 18 रैंक है इसका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, 4000 से ज्यादा एथलेट्स मेडल अचीवर हैं, राइट? 1 मिलियन US$ एथलेट्स गारंटी है अगर कोई इसका प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट होता है तो, राइट? और ये 6 साल से लगातार काफी सारे कंट्रीज के अंदर नंबर 1 डाइटरी सेलिंग इंडस्ट्री, ये नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड बन चुका है। और मैंने बोला ये तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? और सबसे बड़ी जो मुझे चीज लगी इस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। और इन्होंने थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन जैसे जैसे मैंने ट्रेनिंग लिया और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डाइटरी सप्लीमेंट में कैसे काम करती है। तो मैं तो एकदम एक्साइटेड हो गया। मुझे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया। मैंने देखा हमारा कोर एसेंशियल, तो मैंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में मल्टीविटामिन मिलते हैं। 2 से ज्यादा कोई भी मल्टीविटामिन कर दो तो उसको मल्टीविटामिन कहते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाला 100% नेचुरल, 100% डाइजेस्टेबल, ये सारी जो मैंने कंपैरिजन किया तो इससे बेटर है नहीं, और इसकी जरूरत हर फैमिली को है, राइट? तो ये अगर काम जबरदस्त है तो मैंने डिसीजन लिया उसी वक्त। और फिर मैंने क्या किया कि इसकी थोड़ी सर्च किया मैंने, और सर्च करने के बाद मुझे पता चला थर्ड पार्टी लोगों ने काफी सारी किताबों के
अंदर 1600 कंपनियों का कंपैरिजन करके सिर्फ और सिर्फ यूसाना को प्लेटिनम प्लस रैंकिंग दिया है, 5 स्टार प्लस रैंकिंग दिया है। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए कुछ अचानक मुझे लगा कि ये सारी चीजें क्या होगी। फिर मैंने कंपैरिजन किया कि इस बिजनेस में एक्चुअली करना क्या है। कंपैरिजन मैंने किया थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, ऑफिस, स्टॉक, स्टाफ, लीगल फॉर्मेलिटीज, 10-10 घंटे, 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है, राइट, उधारी देनी पड़ती है, लोन्स आप सब जानते हैं अगर कोई होंगे, राइट, जीएसटी के लफड़े और जो कॉरपोरेशन होता है उसके लफड़े, राइट। मैंने देखा 2001 के अंदर जब गुजरात के अंदर भूकंप आया था, मैंने देखे रॉयट्स। तो इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी के बीच में हम हमारा सपना पूरा करने के लिए हर व्यक्ति काम करते हैं, एग्रेसिव होके काम करते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, 0 कुछ भी नहीं है। नो ऑफिस, नो गोडाउन, नो स्टॉक, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई फ्लेक्सिबल टाइम पे काम करो, कोई उधार देना नहीं है, उधार लेना नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटीज नहीं है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना रही है। और इसकी अगर मैनेजमेंट देखे तो माइंड ब्लोइंग। इंडिया में जब मैंने देखा, जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया हमारे मैनेजमेंट के साथ, अरे पुनीत सर को मैं मिला, क्या हम्बल पर्सनालिटी है, मैं विक्रांत जी को मिला, मैं गुंजन मैम को मिला, फिर मैं पंकज जी को मिला, मनप्रीत जी को मिला, अमित जी को मिला। तो ये सारी मैनेजमेंट लाइक अ फैमिली, और हमें सपोर्ट करने के लिए 24/7 जैसे हम लोग काम करते हैं हमारे सपनों के लिए। लेकिन ये पूरी जो मैनेजमेंट टीम है, ऐसा मैंने 25 ईयर के कैरियर में ऐसी मैनेजमेंट टीम नहीं देखी मैंने, राइट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर करना है, नेटवर्किंग करनी है, राइट। तो मैंने ये सारी चीजें, राइट। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो जब प्लान की बात आई, रोहित सर ने मुझे जब प्लान बताया, आप नहीं मानेंगे, मैंने देखा पिछले 25 ईयर के अंदर जब मैं साइड में भी हो गया था डायरेक्ट सेलिंग के, तब काफी सारे लोग आते थे कुछ लेके, लेकिन मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने इंटरेस्ट बीच में नहीं लिया, तो मैं सुनता भी नहीं था। लेकिन हमारे प्लान के अंदर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फिर भी 44% प्लस पे आउट है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 44% पे आउट, स्ट्रक्चर बाइनरी और वॉल्यूम से पैसा आता है, रीपर्चेजिंग प्लान। मैंने बोला यार ये तो जबरदस्त, बहुत, मतलब मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया, राइट। मैंने सर को बोला कि सर ये मेरा आप केवाईसी यहीं पे पकड़ लीजिए, मुझे तो वीजा मिल गया है, मैं तो यूएस जा रहा हूँ, वापस आने के बाद मैं 100% करूंगा, आप मेरा आईडी इसमें करवा देना। मैं यूएस गया, वहां पे भी काफी सारा मेरा एक्साइटमेंट रहा, वहां से भी मैंने काफी सारे कॉल्स करके, जो बेसिक्स मैंने फाउंडेशन जो डालना था वहां पे कॉल्स करके, इंडिया में वहां पे सबकी केवाईसी मैंने वहां पे व्हाट्सएप पे मंगवाना चालू किया, इतनी एक्साइटमेंट। और जैसे ही मैं वापस आया फरवरी में, लैंड किया मैंने एयरपोर्ट पे, तो मैंने मेरी फैमिली को फोन नहीं किया, मैंने सबसे पहले रोहित सर को फोन किया, सर मैं इंडिया आ गया हूं और इसको मैं बहुत ही एग्रेसिव तरीके से करना चाहता हूं, आप मुझे समय दीजिए। तो सर ने बोला कब आना है बताओ। तो सर ने मुझे टाइम दिया 10, 11, 12 फरवरी 2024, राइट। ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, मैंने फिर सिर्फ एक्टिवेशन करवाया था, थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर डाली थी। लेकिन जैसे ही मैं आया, घर पे गया, और दूसरे दिन से मैंने सबको कॉलिंग करना चालू किया, 10, 11, 12 तारीख को रोहित सर आ रहे हैं और आपको, मैंने सबको इनवाइट किया, बेसिक्स करना स्टार्ट किया। एंड आप नहीं मानेंगे, रोहित सर ने इतना पैशनेटली, जैसे जैसे लोग आते गए सबको प्लान बताना स्टार्ट किया। एक दिन में 5-5, 7-7, 10-10 प्रेजेंटेशन किए सर ने। और उस टाइम तो इतने इफेक्टिव प्रेजेंटेशन भी नहीं थे स्टार्टिंग में। तो जैसे जैसे लोग आते गए 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज जब रोहित सर गए, उसके बाद आज तक मेरे लिए रोहित सर ने प्लान नहीं बताया है। डेली मैंने नियम लिया कि मेरे दोपहर का जो टाइम था ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, पहले क्या था कि मैं 10 बजे ऑफिस जाता था, 10, साढ़े 10 बजे, 11, 1 बजे घर पे आता था, फिर 4 बजे ऑफिस जाता था और 6 बजे, साढ़े 6 बजे वापस आ जाता था। तो बीच का जो टाइम था वहां पे मैंने लोकल अहमदाबाद में लोगों का कॉन्टेक्ट करके 1-on-1 प्लान बताने स्टार्ट किए। और मैंने
कोविड ने हमें सिखा दिया है टेक्नोलॉजी। तो रात को 8 बजे के बाद जो टीवी देखने का टाइम था, उस टाइम पे मैंने जूम मीटिंग में बिजनेस करना स्टार्ट किया, लोगों को बिजनेस के बारे में बात करना चालू किया। तो डेली मेरा नियम बन गया, और इतना पैशन और इतना एक्साइटमेंट आता था हर प्लान के अंदर। तो मेरे ख्याल से एवरेज उस दिन से आज तक मेरा एवरेज पर डे का 2 प्लान का आता है, राइट। तो मेरे ख्याल से टाइम तो मुझे पता नहीं है अभी, क्या सर ने बताया, मुझे तो 10 मिनट बोलने को बोला था, मैं तो बोलते ही जा रहा हूँ, राइट। तो राइट, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो है एक्साइटमेंट, राइट, 1 साल 10 महीने तक तो मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन नहीं गया, ऐसे ही मैंने बिजनेस किया। और जो अभी लास्ट में मुझे अचीवमेंट मिला, सिल्वर डायरेक्टर, अभी मेरे को पिन लेवल मिला, राइट। तो मैंने वहाँ से अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन जाना स्टार्ट किया है, राइट। लेकिन फिर भी मेरा जो बिजनेस है वो 17 स्टेट के अंदर फैल चुका है आज, राइट। तो मैं चाहूँगा कि ये जो भी मैंने मेरा स्टोरी बताया या बैकग्राउंड बताया जो भी है, लेकिन अ, ये बिजनेस की ज़रूरत ईच एंड एवरी फैमिली को है, इनके प्रोडक्ट की ज़रूरत ईच एंड एवरी फैमिली को है। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जो मार्केट जा रहा है पूरा, जो वेलनेस इंडस्ट्री जिस तरीके से बढ़ रही है, और जितने सारे प्रॉब्लम्स है हेल्थ के, ईच एंड एवरी फैमिली को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत है, राइट। तो आप और हम सब मिलके, मैं चाहूँगा कि हम लोग इस यूसाना बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके, प्रायोरिटी सेट करके इसको आगे ले जाएं, और ऐसे रोल मॉडल हम सब लोग बने कि आज तक इतने सालों से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन हमारी कंपनी और हमारे सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, एज ए रोल मॉडल इसको काम करना है, एक एग्जांपल सेट करना है कि इतने बढ़िया तरीके से, एथिकल तरीके से, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करके हम सब लोग एक साथ मिलके एज ए फैमिली हम इसको आगे लेके जाए, राइट। मेरा तो बात खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ पंकज जी को। टाइम ज्यादा हो गया तो आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। No issues. Hats off, Ravinder ji. एक बार जोरदार तालियां. You can write your like comment in the box, chat box. Yes, and really amazing journey है. Ravinder ji, thank you so much for sharing your amazing journey and you are an inspiration to many. Yes, and मैं चाहूँगा क्योंकि like this is a testimonial marathon, so मैं चाहूँगा अगर जो ऑडियंस है, हमारे जो लीडर्स ऑडियंस है, आपका कुछ क्वेश्चन है फॉर रविंदर जी, देन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. आप पूछ सकते हैं कि कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, कैसे लाइक इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो स्टार्ट किया विथ यूसाना. यस आई कैन, यस आई राइट इन द चैट बॉक्स. सो आपके लिए सिर्फ लव और क्लैप्स आ रहे हैं सर. सो यस यस यस, सुपर सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू. कुछ अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. सो सर, मेरा आपसे पर्सनल लाइक क्वेश्चन है, इफ यस सर, यू वुड लाइक टू यस सर, आंसर. यस सर। मुझे जानना है लाइक आपका सर मोटिवेशन क्या, आपका व्हाई क्या है, लाइक क्या चीज आपको मोटिवेट करता है इन इन यूसाना. हाँ सर, बहुत ही सही समय पे ये सवाल किया है, राइट। क्योंकि मेरा पैशन तो डे वन से रहा है, मैं एकदम क्लियर हूँ डे वन से। जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, जो यूएस ब्रांड इंडिया में जब लॉन्च हुआ था, तब एक कंसेप्ट के बारे में मैं एकदम 100% कन्विंस था। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते गए, राइट, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे थोड़ा सा ट्रेडिशनल पे भी मेरा ग्रोथ हो रहा था और यहाँ पे हो रहा था, तो मैंने अपने आप को पीछे कर लिया था। और जितने भी कंपनी मैंने किए वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे, टॉप लेवल पे, सक्सेसफुल लेवल पे मैंने काम किया, राइट। लेकिन जो मैं करना चाहता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, और मैं लोगों के लिए जो करना चाहता था, तो कहीं ना कहीं गड़बड़े होती थी कंपनी के मैनेजमेंट में, कहीं प्लान में, कहीं कुछ ना कुछ, मतलब टेक्निकल, जो आज जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लोग हैं जो फेस कर रहे हैं, राइट, आज जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो सारी चैलेंजेस थी। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेकिंग है। लेकिन जब रोहित सर ने मुझे यूसाना के बारे में बताया, तो आज तक, उस दिन से आज तक
मैं वो डेट भी आपको बता सकता हूं, 17 अक्टूबर 23 की बात कर रहा हूं। हम डिनर पे बैठे थे और इसके बारे में, उससे लेके आज तक इसका एक भी नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं मिला। और मुझे जो पर्पस था मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आने का, ट्रेडिशनल बिजनेस को एज ए इक्वल प्रायोरिटी के साथ, तो वो मैं कुछ जो चीजें नहीं कर सकता, तो मुझे यहां पे दिखा कि यहां पे मैं चकदे फटे कर सकता हूं। मतलब जो करना है, एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं आप सभी लोगों के सपोर्ट से, मेरे फैमिली के साथ। और लकीली जो डिसीजन लिया, तो मुझे मेरे टीम मेंबर्स में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग, जैसे मैंने चाहे थे ऐसे लोग आज अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरे साथ, और वही थॉट प्रोसेस के साथ कि कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, और आई एम अवेलेबल 24/7। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। योर जर्नी इज रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लगा आज आपको जान के। लाइक हम बात करते थे, मिलते थे सर, लेकिन पर्सनली लाइक आज मैं आपको जान रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, लाइक हमारे जितने भी ऑडियंस आपको आपको जान रहे हैं सर। बहुत ही अच्छा लगा, एंड जल्दी मिलते हैं सर हमारे इवेंट्स में। ऑल थैंक द यू बेस्ट। सर। ऑल द बेस्ट। यस। सो थैंक यू सो मच सर, जल्दी मिलते हैं। सो आई होप आप लोगों को, हमारे जितने भी ऑडियंस लीडर से, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को। या एंड कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑलवेज। यस। सो हम आगे बढ़ते हैं, एंड जो हमारे आज के स्पीकर है, शी नितिका सुद बंटा फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। सो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। सो नितिका जी, आई आई होप यू आर एबल टू हियर माय वॉइस। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी पंकज। यस। यस यस यस। 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 ओवर टू यू। थैंक यू पंकज जी। हाय एवरीवन, मेरा नाम नितिका है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। यूसाना को मैंने 9 महीने पहले ज्वाइन किया था। अप्रैल में मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और लगभग 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। 17 इयर्स मैंने एक ही कंपनी में काम किया है। यूसाना में आना मेरे लिए बहुत इजी नहीं था, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के साथ इतने लंबे टाइम तक जुड़े रहते हो ना, तो आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो। बट मेरी अटैचमेंट कहीं ना कहीं अब फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन में बदल गई थी। उसका रीज़न क्या था? मैनेजमेंट, हमारी स्ट्रैटेजीज जो कंपनी नई नई लेकर आ रही थी, सपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करता था। तो पुरानी कंपनी में 16 साल पहले या 17 साल पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, तो मैं तो अपने लिए एक अच्छा खासा नेटवर्क ऑल इंडिया बना चुकी थी। लेकिन जो मेरी टीम थी, जो मेरे साथ दिन रात काम कर रही थी, वो नहीं ग्रो कर पा रही थी। जिसका रीज़न क्या था कि ऑलरेडी इस कंपनी को इंडिया में 30 साल हो चुके थे। 30 इयर्स में वो कंपनी घर घर तक पहुंच चुकी थी, हर घर में पहुंच चुकी थी। तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी थी। हम यूज़र बना चुके थे, लोगों को बहुत सारे ऐसी जगहें थी जहाँ से वो प्रोडक्ट बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन लेवल ना मेरे अंदर भी था, मेरी टीम में भी था। क्योंकि एक लीडर जो होता है ना, वो सिर्फ अपने चेक के लिए या अपने इनकम के लिए काम नहीं करता। अगर वो अपनी तरह के लीडर्स डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स वो ग्रो नहीं कर पा रहा। हम लोग स्टेगनेंट थे। तो चाह तो बहुत रही थी कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर मैं और मेरी टीम अच्छे से परफॉर्म कर पाएं, अपने अधूरे सपनों को पूरा कर पाएं। बट ये चीज़ इतनी इजी नहीं थी मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक लीडर थी, अच्छी खासी टीम को लीड कर रही थी। और मेरी हर मीटिंग में, हर प्रेजेंटेशन में मैं एक लाइन ज़रूर कहती थी कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, आपको लगातार काम करना है और वहीं से आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। बट एक टाइम ऐसा आया जब मैं खुद ही नहीं ग्रो कर पा रही थी। तो अगर मैं किसी और जगह जाने की सोच रही हूँ और मैं कुछ और करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले 100% कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटीज नज़र आनी चाहिए, तभी मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। सो यूसाना मेरे लिए कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं था। मतलब मैं उसके बारे में पहले से जानती थी, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो यूएसए में सेटल्ड हैं और वो यूसाना के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे थे। तो प्रोडक्ट क्वालिटी तो ऑलरेडी मुझे पता था। बट जैसे ही मुझे पता चला कि इंडिया में यूसाना एंटर हो गया है और यूसाना लॉन्च हो चुका है, और उसका क्रेडिट मैं देती हूँ पंकज जी आपको, कि पंकज जी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था नागालैंड में, और जिसकी मैंने एक वीडियो देखी थी और वहां से मुझे अपनी प्रीवियस कंपनी की कुछ वाइब्स आई और मैंने तुरंत इनको मैसेज किया कि सर क्या है ये। तो मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया और उसके बाद फिर मैं अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में आई, मिस्टर विमल जी के। और फिर यूसाना को ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को एक असाइनमेंट दिया कि आप प्लीज़ इस पे अच्छे से रिसर्च करो। क्यों? क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से तो थी नहीं,
मैंने तो हमेशा ब्यूटी इंडस्ट्री में काम किया, स्किन केयर में काम किया, बट मुझे साइंस के बारे में कुछ नहीं पता था और यूसाना उस समय सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स में डील कर रहा था। बट मेरे हस्बैंड ने इस पे बहुत रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, मतलब स्ट्रांग हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जब आप किसी नई कंपनी में कमर्शियली जुड़ने जाते हो या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारे के सारे फैक्टर्स में यूसाना बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था। और फिर मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, विमल जी की गाइडेंस में मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब मैंने प्लान को समझा, जब मैंने कंपनी का बैकग्राउंड अच्छे से पढ़ा और समझा, मेरा कॉन्फिडेंस और भी डबल हो गया। क्यों? मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हम जिस इंडस्ट्री में है वहां पर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान अगर अपना प्लान दिखाता है ना, तो वो आपसे बात करेगा मर्सिडीज की, ऑडी की, और अगर आप उससे काम के साथ निकलेंगे ना, तो वो एक शेयरिंग ऑटो तक नहीं मतलब पे करेगा। उसका रीजन क्या है कि हम कुछ ऐसे प्लान्स मार्केट में दिखाते हैं या देखते हैं जहां पर कुछ भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है, जहां पर कुछ भी रियलिटी नहीं है, और जिनके जो प्लान्स में आपको कुछ भी ऐसा पेएबल अमाउंट दिखेगा ही नहीं। बट यूसाना में जो प्लान है ना, जो कॉम्पनसेशन प्लान है, वो इतना स्ट्रांग है और इतना सिंपल है कि जब मैंने अपना डायरेक्टरशिप किया, इनकम तो मैंने वेरी फर्स्ट वीक में ही अर्न करनी शुरू कर दी थी। छोटी सी इनकम थी 560 रुपए की, लेकिन जब मैंने 8 महीने के अंदर अपना डायरेक्टरशिप अचीव किया, तो उस टाइम पे मेरी जो इनकम थी ना, वो एग्जैक्ट 48,000 थी। एग्जैक्ट, ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। जहां पर हमने ऑलरेडी काम किया है या जहां से हम आए हैं, वहां पर कभी भी हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलती थी। अगर हम कभी कैलकुलेट करते थे ना कि इस महीने में मेरी इनकम 50,000 आएगी, तो समटाइम्स ऐसा भी होता था कि इनकम 35,000 रह जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां के जो प्लान्स थे वो डिफरेंशियल प्लान्स थे, 3%, 6%, 9%, पैसा बहुत जगह हमारा बढ़ जाता था। लेकिन यूसाना का जो कॉम्पनसेशन प्लान है ना, बाइनरी और जनरेशन का जो मिक्सचर है, वो एक यूनिक प्लान है। और यहाँ पर 48,000 रुपया जब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो वहां से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मैं वीकली 48,000 रुपया अर्न कर रही हूँ, तो आप खुद सोचिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर लेवल को मेंटेन किया जाए और महीने में 4 हफ्ते अगर आप 48,000 रुपया कमा रहे हो, तो आपकी इनकम जो है वो लगभग 2 लाख के आसपास हो जाएगी। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, बीइंग एज अ हाउस वाइफ, मेरे लिए 2 लाख रुपए की इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो हम ये सपना लेकर नहीं आते हैं कि हमें अपना घर चलाना है। घर तो पहले भी चल रहा है, बच्चों की एजुकेशन भी चल रही है, घर में राशन भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे हमारे सपने बड़े होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम पैसा ही नहीं लोगों को दिलवा पाएंगे, हमारे लोग पैसा अर्न ही नहीं कर पाएंगे, तो वो बड़े छोटे सपने बड़े भी नहीं होंगे। तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी यहाँ पर वो ये था, इसका कॉम्पनसेशन प्लान। और उसमें एक चीज जो है ना, पैसा जो है ना, वो आपके हर लेवल पे बट रहा था। यूसाना की फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी चंडीगढ़ में, रेडिसन में हुई थी, मेरी लाइफ में, मेरे करियर में फर्स्ट टाइम था कि मेरे साथ मेरे एक ही स्टेज पे पूरी टीम थी। फर्स्ट टाइम हम सभी ने स्टेज शेयर किया था और हम सबका ऑलमोस्ट सेम लेवल था, सेम चेक थे। अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं होता, किसी प्लान में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पर पूरी टीम सेम लेवल से पे आउट के साथ खड़ी हो। तो यहाँ पर आप ये मतलब ये आप अपने लोगों को इस चीज का विश्वास दिला सकते हो कि आप अगर उनको यूसाना में लेकर आ रहे हो, तो आप उनके अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हो। और मैं एक चीज और आप लोगों को कहना चाहूंगी, हम बहुत सारी मीटिंग्स में, बहुत सारी जगह ऐसे जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं जहां पर आपको बड़े बड़े लीडर्स के टेस्टिमनी सुनने को मिलते हैं। ठीक है, हमें उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। हमारे में और आप में उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ क्या फर्क है कि जब कोई कंपनी या कोई प्लान नया शुरू होता है ना, वो लीडर्स उस कंपनी में, उस प्लान में उस समय ट्रस्ट करते हैं और वो एक डिसीजन उस टाइम लेते हैं। वो डिसीजन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, और उसके बाद वो उस कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं, जो धीरे 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 ग्रो करता है। और जब वो ग्रो करता है ना, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब आप ही के एग्जाम्पल लोगों को दिए जाते हैं। तो यूसाना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुद के एग्जाम्पल सेट कर सकते हो और लोगों को आने वाले टाइम में आप बहुत सारी चीजों से इंस्पायर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, अगर हम अपना करियर बनाने आए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसे की बात करेंगे। पैसा कमाना भी इतना इजी नहीं है, ठीक है। पैसा कमाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो हम कंपनी में आए हैं, अगर हम यूसाना की भी बात करें तो उसका बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियली वो कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें उसके प्रोडक्ट्स की, तो यूसाना में जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए था, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो फार्मा सेक्टर से थे और उनको लगभग 30 इयर्स का एक्सपीरियंस था फार्मा इंडस्ट्री का। उन्होंने यूसाना के सारे सप्लीमेंट्स में इन डेप्थ स्टडी किया और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी पूरी टीम को सपोर्ट किया। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही एजुकेट कर रहे थे। हमारी डेली बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं जिसमें वो हर एक इंसान को एजुकेट कर रहे हैं और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं वो प्रॉपर नॉलेज के साथ वो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम बेचने में बिलीव नहीं करते। हमारा काम बेचना नहीं है, क्योंकि हम सेल्स गर्ल नहीं हैं, हम सेल्स पर्सन नहीं है कि लोगों के घर घर जाके सामान बेच रहे हैं, ठीक है। हम एक हेल्थ एडवाइजर है, हम लोगों को एक अच्छी हेल्थ दे रहे हैं। अगर अच्छी हेल्थ है तो आपको पैसा अपने आप आएगा, वेल्थ अपने आप मिलेगी। यही जो हमारे फाउंडर मेंबर है मिस्टर वेरिन वंश, उनका भी यही कहना है कि आप एक हेल्थीएस्ट फैमिली क्रिएट करिए, पैसा खुद ब खुद लोग कमा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि जिस कंपनी को मैंने चूज किया उसका बैकग्राउंड, उसके प्रोडक्ट क्वालिटी और उसका कॉम्पनसेशन प्लान। प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन मैंने सबसे पहले खुद पे यूज किया, क्योंकि मेरा मानना क्या है, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने आगे लोगों से वो चीज़ शेयर की। जैसे मुझे खुद को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और जिस टाइम पे मैं यूसाना में आई थी उस समय मुझे सिवियर अटैक पड़ा था अर्थराइटिस का, बट मैंने इसके प्रकोसा, बायो ओमेगा और मैग्निकल डी तीनों प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया और विद इन 5 डेज जो मेरे को अपने अंदर चेंज लगा वो मैंने लोगों से शेयर किया। और जैसे जैसे हम लोगों को बताते गए, लोगों को एजुकेट करते गए, लोग इसको कंज्यूम करते गए और हमारी मीटिंग्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स आते गए जो लोगों को इंस्पायर करते रहे। और इसी की वजह से आज मेरा जो टीम साइज है वो डेली का ग्रो कर रहा है, डेली बढ़ रहा है और मैं पूरी टीम के साथ काम कर रही हूँ। और यहाँ पर इस इंडस्ट्री में अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो बिना टीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, जो मेरी टीम है वही मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मेरे पास टीम नहीं होगी तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। और यूसाना का कॉम्पनसेशन प्लान एक ऐसा प्लान है जो हमारी टीम को स्टेबल रखने में हमें बहुत सपोर्ट करता है। मुझे अपने प्लान में, अपने प्रोडक्ट्स में और मुझे अपनी कंपनी पे पूरा फेथ है कि जितने अधूरे सपने हैं हम इस कंपनी से पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों के पूरा करते हुए और भी बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पंकज जी। थैंक यू सो मच नितिका जी, व्हाट एन अमेजिंग जर्नी एंड बहुत कम समय में, आई बिलीव यस ओनली 8 मंथ्स विथ यूसाना, बहुत कम समय में आपने ये मुकाम हासिल किया एंड रियली हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। एंड मैं चाहूंगा जितने भी हमारे गेस्ट हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं नितिका जी से तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या शी इज देयर टू आंसर योर क्वेरीज। Yes, so we want more hearts and claps. Thank you everyone, thank you so much. Okay, great. So I believe yes. So कई सारी कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए एंड मैं चाहूंगा मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, जी सर। नॉट पर्सनल, फॉर एवरीवन एक्चुअली। सो मैं जानना चाहूंगा सिंस रिक्रूटमेंट, हम ये वर्ड हम यूज नहीं कर सकते फॉर फॉर आवर कंपनी यूसाना, बट हमें अगर अपना टीम साइज बढ़ाना है, सो देयर में बी सो मेनी सेलर्स बिलीवर्स आउट हियर, है ना। हमारे यहाँ पे सेलर्स भी है, बिलीवर्स भी है, इवन बिजनेस सेंटर जिन्होंने अभी तक सेलर अचीव नहीं किया या बिलीवर या बिल्डर अभी तक अचीव नहीं किया, तो क्या एडवाइस आपसे मिल सकता है कि अगर हमें आपका टीम साइज बनाना है, बढ़ाना है, और कैसे मुकाम हासिल करना है ना। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूँ सेल्स फोर्स, सेल्स काउंट, आपके टीम में अगर नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स बढ़ाना है ना, नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स, अगर आप समझ रहे हो, मतलब स्पॉन्सर में किसको बोल रहा हूँ, जो लोग लेके आ रहे हैं बिजनेस में, है ना। Yes, sir, yes, तो sir. अगर नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स मुझे बढ़ाना है तो किस तरह का अगर एक्टिविटी करते हैं
तो नंबर स्पॉन्सर्स बढ़ सकता है आपके सेल्स काउंट में या सेल्स फोर्स में, तो कुछ यस यस आपकी सर, ओर से हम जैसे जानना कि चाहिए। अभी आपने मेरी जो पीपीटी शेयर की है, अभी हमारे यहाँ पर जितने लोग हमारे साथ इस समय इस सेशन में कनेक्टेड हैं, उन्होंने देखा होगा कि जी हम बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करते हैं। ठीक है, जी हम अपने घरों में भी एक्टिविटीज प्लान करते हैं छोटे लेवल पे, और हम बड़े लेवल पे भी प्लान करते हैं। स्टार्टिंग में हमने जो देखा कि हमने बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज जब आप बड़ी बड़ी करते हो ना, तो आपके पास लोग तो आ जाते हैं, बट आपका फॉलोअप नहीं हो पाता। जब आपका फॉलोअप नहीं हो पाएगा ना, तो वो आपके जो एफर्ट्स है वो जीरो हो जाते हैं। तो अभी कुछ टाइम से हमने फोकस किया है छोटी छोटी एक्टिविटीज पे। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की स्किन टेस्टिंग कर रहे हैं, हम बीएमआई टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जी आपको लोगों का आइडेंटिफाई करनी है, उनकी नीड। हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे लेकर आना है, लो सामान लो ना, भरना नहीं है सामान। अगर आपने किसी को 5,000 रुपए का सामान दिया है, तो उस 5,000 रुपए की उस पर्सन को जरूरत होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे हम अपनी प्रीवियस कंपनी में भी कहते थे, कैटलॉग शेयरिंग मस्ट है। वो कैटलॉग शेयरिंग कब होगी, जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। तो बिना नॉलेज के अगर आप फील्ड पे निकलोगे, तो आप बिल्कुल वैसे बिहेव करोगे जैसे एक सिपाही होता है ना, आप उसके हाथ में तलवार दे दो और उसको बिल्कुल भी ट्रेनिंग ना दो, तो वो मार के नहीं आएगा, वो मर के ही आएगा। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर आपने किसी भी इंसान को बिल्कुल भी सिखाया नहीं है, उसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी है, तो वो पर्सन कभी भी कोई बंदे को कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हो आपकी कन्वर्जन अच्छी हो, आपकी टीम में मैक्सिमम शेयरर्स हो, बिलीवर हो, बिल्डर्स हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी टीम में मैक्सिमम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वो ट्रेनिंग्स क्या होंगी, डेली ट्रेनिंग्स हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। डेली आपका जो टॉपिक है वो अलग होना चाहिए। और हमें ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं एक लीडर हूं तो मैं ही एक लीडर हूं, नहीं, मेरी टीम में मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए। क्योंकि आप जो सीखते हो ना, वो हमेशा अपनी टीम से ही सीखते हो, आपके अपने ऊपर वालों से नहीं सीखते। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी टीम आपको लेसन देके जाती है, वो आपके परफेक्ट लेसन होते हैं। और मैं अपनी टीम से बहुत कुछ सीखती हूँ सर। मेरी टीम में मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, जो मुझे ऑनलाइन काम करने के अलग अलग तरीके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपकी जो लर्निंग है ना, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको जहां से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, उसको सीखिए। और सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स को अगर आपने मिस कर दिया, तो यूसाना विदाउट ट्रेनिंग्स कुछ नहीं कर पाएंगे सर। प्रोडक्ट नॉलेज तो बहुत जरूरी है, और हमारे प्रोडक्ट इतने अमेजिंग है। जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इवन कि अगर मैं बात करूं, मेरे हस्बैंड फार्मा से हैं, उन्होंने सारी जिंदगी डॉक्टर को पढ़ाया है। उनका खुद का कहना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने कहीं नहीं देखी जो यूसाना लेकर आया। और यही टेक्नोलॉजी है जो हमारे प्रोडक्ट को और भी ज्यादा यूनिक बना रहे हैं। अब देखो, अगर हम बात करें, मार्केट में दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के कितने सारे ब्रांड्स हैं। अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं इस मार्केट में, मार्केट लाइक जंगल, जहां पर आपको एंड नंबर ऑफ स्किन केयर मिल जाएंगे, बट पोस्ट बायोटिक रेंज कितने लोग बना रहे हैं। अब पोस्ट बायोटिक है क्या, जब तक आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है, आप एक क्लिंजर नहीं बेच पाओगे। हमने अभी तक कम से कम भी 100 से ज्यादा लोगों को डेमोज दिए हैं, हमारी जो रेंज लॉन्च हुई है, और उसके बाद हमने ऑर्डर जनरेट किया है। ऐसा नहीं है कि हमने लोगों का सामान घर में भराया है, किसी का भी हमने स्टॉक नहीं कराया। हमने लोगों की नीड को क्रिएट किया और उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट दिया। क्योंकि पोस्ट बायोटिक रेंज हमारी बहुत जबरदस्त रेंज है सर, इसको प्लीज लाइटली मत लीजिए। हमने अभी तक जितनी स्किन केयर बेची है ना, वो कैटेगरी वाइज होती थी, एज वाइज, स्किन वाइज, बजट वाइज। यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है जो सबके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी की एक्ने स्किन है, वो वहां पे भी काम कर रहा है, सेंसिटिव स्किन है, वहां पे भी काम कर रहा है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप बताइए इससे बेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब शेयरर तो मुझे नहीं लगता करना किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्टर की। तो जितने ज्यादा डायरेक्टर होंगे ना, हमारी इनकम उतनी ही ज्यादा मल्टीप्लाई होगी। 4 डायरेक्टर मींस आपका 2 लाख का अपना चेक। तो मेरा खुद का जो एम है ना, मेरा जो ड्रीम है, वो ये है कि जल्दी से जल्दी मेरी टीम में सभी डायरेक्टर बन जाए, मैं 2 लाख कमाऊं। वो उनकी मर्जी है, अगर उनको 2 लाख कमाना है या 48,000 कमाना है, वो उनकी चॉइस है। दैट्स इट। थैंक यू सर। Great, great, great. Amazing sharing. Yeah, and I hope. Okay. So बहुत सारी like comments आ रहे हैं, ये जो journey is inspiring. अच्छा लगा ये, right मैम? Okay, great, great. Thank you so much for your sharing, and जल्दी मिलेंगे for our like next events. Yes, नितिका जी. थैंक यू सर, Thank थैंक you यू so सो much. मच। All the best for this week closing. So आगे बढ़ते हैं, and we have like one of very young
director from Cuttack, Orissa. So एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए. So we have Pratima Priyadarshini Parida from Cuttack, all the way from Cuttack, and I met her, and she herself is a great trainer actually. So काफी अच्छा ट्रेनिंग भी देती है actually, and we have here. So Pratima, I hope you can hear my voice. आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Okay, I'll request you to please switch on your video. Turned on. Okay, I can't see. Okay. Yes, you can switch on your video. You can switch on your video, please. Are you there, Pratima? Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. Yes. Go ahead. Go ahead. Oh, okay, sir. Sir, thank you, sir. Good evening to everyone. And it is a pleasure. I get to talk to everyone. Thanks to Pankaj sir for choosing me from my place. Actually, I'm born and brought up in Cuttack, the silver city of Odisha. And मैं अगर कहने को जाऊँ तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने को मुझे 3 साल हो गए. 3 साल मतलब जब मैं पहले कॉलेज ज्वाइन किया था, तो कॉलेज ज्वाइन करने के टाइम से ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सीखना समझना शुरू किया कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है. कई डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम भी किया है. एंड यस, आई हैव क्वालिफाइड एज द यंगेस्ट डायरेक्टर इन यूसाना. अ स्पेशल थैंक्स टू श्याम सर एंड पंकज सर, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट बड़ा सा मास मीटिंग था वो पंकज सर ने ऑर्गेनाइज करवाया था. पंकज सर और श्याम सर के वजह से ही आज आई एम एबल टू क्वालिफाई यंगेस्ट डायरेक्टर. एंड अगर मैं कहने को जाऊँ मेरे एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक्सपीरियंस है और मैंने जो जो चीज़ें सीखी है, इट इज़ लाइक बहुत बहुत कम है. अगर मैं कंपेयर करूँ मैं उन मैडम से और रविंद्र सर से, तो उनका जो एक्सपीरियंस है 25 ईयर्स 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया हुआ है इस बिजनेस में. आई कैन से आई हैव अ लॉट टू लर्न. मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं और अभी आई फील दैट यूसाना, कमिंग टू यूसाना इज़ लाइक अ विश कम ट्रू. एक्चुअली कहने को जाऊँ तो ये एक कह सकते हैं कि ये एक मैनिफेस्टेशन जैसा है कि मुझे भी लगता था कि आई नीड टू वर्क. मुझे एक ऐसा कंपनी चाहिए जो कि बेस्ट होगा वर्ल्ड में. कोई भी प्रोडक्ट्स हो या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर मैं जाती हूँ तो दैट शुड बी द बेस्ट वन. क्योंकि मैं जब अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि आई नीड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. सो मैं जिस भी कंपनी को चूज़ करूँ, मैं वो कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी होनी चाहिए. एंड आई फील प्राउड टू से कि यूसाना में आने के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे श्याम सर ने यूसाना से इंट्रोड्यूस किया था, आई वाज लाइक मैंने बहुत हल्के में ले लिया था. एंड देन आफ्टर दैट जब सर ने ना, जैसे रविंद्र सर ने बताया ना पहले, कि उनका जो रिएक्शन था जब उन्होंने सुना कि द फाउंडर ऑफ द कंपनी इज़ अ साइंटिस्ट, सेम रिएक्शन मेरा था. जब सर ने कहा ना कि साइंटिस्ट है मायरन वेंज, मैंने उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया. एंड मतलब मैंने जब उनके बारे में जाना, उनकी डिस्कवरीज के बारे में जाना, आई वाज सो अमेज्ड. मतलब मैंने जब पढ़ा उनके बारे में और जो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की है, जो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, माइंड ब्लोइंग. मैंने जब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा एंड आई वाज लाइक कि ऐसा चीज़ मैंने कभी भी, हम जब नॉर्मल बायोलॉजी पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में हो गया, स्कूल्स में हो गया, मैं जब सिखाती हूँ किसी को सेल के बारे में और हमारे बॉडी में क्या-क्या चलता है, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. जब मैंने नया-नया ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ, आई वाज़ लाइक ये बुक में आना चाहिए, ये सारी चीज़ें बुक में पढ़ाना चाहिए. एंड जब प्रोडक्ट्स की बात करूँ, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो जो 10 प्रोडक्ट्स हैं, पहला बात तो जो मेरा अटेंशन सीक करता है वो चीज़ें है कि प्रोडक्ट्स पीडिया सर्टिफाइड है. मतलब डॉक्टर्स बुक में सजेस्टेड है और डॉक्टर रिकमेंडेड है.
मैं कंपेयर नहीं कर रही किसी चीज़ को, लेकिन जब मैं पहले किसी कंपनी में या फिर किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड थी, आई यूज्ड टू मतलब फेस अ लिटिल प्रॉब्लम। उसमें होता क्या था कि वी यूज्ड टू पीपल यूज्ड टू कंसल्ट अस लाइक एज अ हेल्थ कोच और अ न्यूट्रिशनिस्ट। पीपल यूज्ड टू आस्क अस कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यू हो या फिर कोई भी इश्यू हो, लोग आके पूछते थे कि ऐसा प्रॉब्लम है और मुझे इसे जड़ से उखाड़ना है। तो हम यही चीज़ पे फ़ोकस करते थे कि कैसे उस आदमी के लाइफ़स्टाइल को सुधारा जाए। मतलब उसके सारी चीज़ों को, सोने से लेके खाने-पीने हर चीज़ को सुधारा जाए। तो हम जब उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में हम जो-जो बोलते हैं वो करता जाता है। फिर उसके बाद जब बात प्रोडक्ट्स की आती है और जब बात आती है कि उसे क्या-क्या कंज़्यूम करना चाहिए ताकि वो सही तरीके से, क्योंकि आज की लाइफ़स्टाइल की अगर हम बात करें तो हमें सही से अपने फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ठीक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाइड और बहुत सारी चीज़ों को मतलब ग्रो किया जाता है आर्टिफ़िशियली। तो वहाँ पे क्या है ना, न्यूट्रिएंट्स और इसकी डेफ़िशिएंसी भी होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 30 साल पहले की, तो अभी 30 साल बाद देखिए तो सारी डिज़ीज़ेज़ हमारे अंदर जो है ना, सारी इनकम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ है। तो उन चीज़ों को सिर्फ़ वो सारी चीज़ें भी न्यूट्रिएंट डेफ़िशिएंसी की वज़ह से होती है। तो जब लोग आते हैं हमारे पास, हम उन्हें कोई प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लोग जब समोसे कचौड़ी खाते हैं तब नहीं पूछते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। लेकिन जब हम कोई प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं तो सीधा-सीधा सवाल आता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है क्या? और अगर हम बोलते भी हैं कि नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, क्योंकि ये सिंपल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट क्यों ही रहेगा? ये कोई मेडिसिन थोड़ी है। सिंपल हमारा खान-पान का एक ज़रिया है। तो वो सीधा जाके एक चीज़ होता है कि न्यूट्रिशनिस्ट से ज़्यादा लोग डॉक्टर को प्रेफ़र करते हैं, और डॉक्टर को पूछते हैं तो जाके डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर थोड़ा-सा माइनर इनकन्वीनियंस उनके लाइफ़ में या फिर कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, कुछ डकार भी थोड़ा-सा इधर-उधर का आ गया ना, वो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं एंड डॉक्टर साला एक, नहीं इसे बंद कर दो अभी, खाने की ज़रूरत नहीं है, अपने नॉर्मल खाने पे फ़ोकस करो। और इससे क्या होती है, उसकी हेल्थ फिर से डिटोरिएट होती है। तो प्रॉब्लम ये होता था कि मैं जिन भी ब्रांड से एसोसिएटेड थी, लास्ट में आते-आते यही प्रॉब्लम होता था कि डॉक्टर्स मना कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि मैं जिन्हें अभी मुझे जो कंसल्ट कर रहे हैं और मैं जिन्हें अभी गाइड कर रही हूँ, लास्ट में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बिज़नेस की बात मैं साइड में रखूँ अगर, तो नॉर्मली मैं जिस कंपनी से बिलॉन्ग करती हूँ या जिसे रिप्रेज़ेंट करती हूँ, आई कैन प्राउडली से कि उसके सारे प्रोडक्ट्स पीडिया सर्टिफाइड है और उसे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो कोई डॉक्टर्स बाद में जाके किसी भी आदमी को प्रॉब्लम नहीं होती कि नहीं डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो गया। मैंने मतलब 6 महीने हो गए मैंने यूसाना में जॉइन किया हुआ, और मैंने जो प्रोडक्ट्स देखा उसमें जो सारी नई-नई चीज़ें थी जो मैंने आज तक कभी पढ़ी भी नहीं थी, जैसे कि मतलब आइनोसिटॉल हो गया, कोलिन हो गया, हेस्पेरिडिन हो गया, ये सारी जो मतलब इंग्रीडिएंट्स है, ये सारी एकदम अलग इंग्रीडिएंट्स हैं। मैंने इनके बारे में बहुत स्टडी किया जब मतलब मुझे पेपर मिला और धीरे-धीरे मैंने इन सारी चीज़ों को देखना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें किसी भी कंपनी में है नहीं। जो कि एक अलग तरीके का बेनिफिट है एक आदमी के लिए, क्योंकि वो सेम चीज़ें, सेम प्रोडक्ट्स कोई और आदमी कंज़्यूम करता है किसी और ब्रांड का और किसी और प्रोडक्ट का। आई एम नॉट कंपेयरिंग बट आई एम स्टेटिंग दैट कि यूसाना इज़ सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम। इट इज़ बेटर बिकॉज़ आई हैव सीन, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं खुद डेली मल्टीविटामिन, ओमेगा, मैं सारे प्रोडक्ट्स अभी यूज़ कर रही हूँ, और मैंने आज तक उसमें कोई भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं फेस किया है। और जितने भी मतलब अगर मैं बिज़नेस की तरफ जाऊँ, तो अगर मैं डायरेक्टर बनी जब, सो आई कैन से कि जब मैं डायरेक्टर बनी, बहुत बड़ा हाथ पंकज सर और श्याम सर का था, क्योंकि उन्होंने जो मीटिंग ट्रेनिंग किया था उसके बाद से एकदम बहुत अच्छा बूम हुआ हमारा। और उसमें मैं कहूँ तो कॉर्पोरेट में बहुत साथ मिला। जैसे मैं अगर अलग ब्रांड के साथ कंपेयर करने को जाऊँ, तो जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे जो अपलाइन है, जो सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसा फीलिंग आया कि एक फ़ोटो मैंने देखा था, जिसमें एक शेर का बच्चा होता है ना, तो शेर का बच्चा ऐसे आगे होता है और उसके पीछे शेर होता है, छुप के ऐसे बोलता है कि चल बच्चे तू जा, कॉन्क्वर कर और मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो अपलाइन हमारे लिए मतलब मैं अगर बोलने को जाऊँ तो मुझे इतना साथ मिला है अपलाइन का, श्याम सर का, वो मतलब इतना अच्छे से हमें सब गाइड करते हैं। आज के डेट में भी टिल डेट अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं सर से कॉन्टैक्ट करती हूँ, अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करती हूँ, और वो हर चीज़ माइन्यूटली इतना अच्छे से डिटेल में समझा देते हैं एंड आई गेट अ क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग।
और हर एक चीज़ में जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आई एम न्यू टू दिस मतलब सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आई एम न्यू। 3 साल होने के बावजूद मैं कहूँगी कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, एंड आई फील दैट आई एम द लकीएस्ट पर्सन अमंग ऑल द पीपल दैट आई हैव इन माय सराउंडिंग। जैसे कि मेरे रिलेटिव्स हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, जो भी सर्कल में मेरे हैं, आई जस्ट फील सो लकी बिकॉज़ अगर मैं कहने को जाऊँ तो लक किसे कहा जाता है? लकी, व्हाट आई मीन बाय लकी इज़ दैट लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत लकी है, इसे ये मिल गया, इसे वो मिल गया। लकी का मतलब क्या होता है? If anyone knows about what actual luck is, drop something in the comment. I must read all your मतलब आप all your thoughts, आप क्या सोचते हैं कि लक किसे कहा जाता है? मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो लक उसे कहा जाता है कि जब एक बंदा राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पीपल के साथ होता है, उसे ही कहा जाता है कि ही इज़ द लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। क्योंकि व्हाई आई फील आई एम द लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि मैं एक राइट टाइम पे मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया है, राइट पीपल के साथ जॉइन किया है। मेरी टीम, मेरे अपलाइन, सब कुछ मेरे लिए एकदम इतने खास लोग हैं। राइट पीपल और राइट सराउंडिंग, मेरी जो राइट टाइमिंग है, राइट प्लेस है, राइट मतलब यूसाना मेरे लिए एक राइट प्लेस है, क्योंकि मैंने जितने भी ब्रांड्स के साथ काम किए हुए हैं, मैंने कहीं न कहीं छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, जो कि बाद में सुलझा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे यूसाना में टिल डेट आई हैवंट फेस अ सिंगल प्रॉब्लम, जहाँ पे कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया मेरे पे और मैं उसे सॉल्व ना कर पाऊँ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, मतलब मैं अगर कहने को जाऊँ तो आई फील लकी कि मैं इस जगह पे ठीक टाइम पे, ठीक जगह पे, ठीक लोगों के साथ हूँ, एंड आई विश कि धीरे-धीरे करके मैं इन लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ी रहूँ। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से कि नो वन इज़ परफेक्ट, क्योंकि अगर सब परफेक्ट होते तो पेंसिल के साथ इरेज़र नहीं मिलता। और बाकी आपने जो स्लाइड्स देखी वो मेरे टीम है। हम रेगुलर सेशंस मतलब करते हैं, अलग-अलग जगह पे सेशंस होता है, सेरेमनीज़ होती है जहाँ पे लोगों को फेलिसिटेट किया जाता है, और अलग-अलग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे लोगों को मतलब कैसे क्या-क्या चीज़ें उन्हें बॉडी में ज़रूरत है, किन चीज़ों पे उन्हें फ़ोकस करना चाहिए विद रिलेटेड टू बिज़नेस हो और रिलेटेड टू देयर बॉडी, देयर ओन हेल्थ हो। उन चीज़ों के लिए हम मतलब सेशंस रखते हैं, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हर एक सेशन बहुत अच्छे से, बहुत ख़ास तरीके से चलती है। लास्टली आई वुड लाइक टू से इट इज़ नेवर लेट टू बिगिन, क्योंकि अगर मैंने 19 इयर्स पे शुरू किया है और मैं आज इस मुकाम पे पहुँच सकती हूँ, तो मैं 2 साल, 3 साल के अंदर मैं और अच्छा लेवल अचीव करने वाली हूँ। मुझे पता है, आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं आगे चल के सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर श्योर बनने वाली हूँ, और मैं 2-3 सालों में ये सारी चीज़ें अचीव करने वाली हूँ। और इफ़ मैं अगर कर सकती हूँ इतने छोटे एज में, अगर मेरे में वो सारी क्षमता है जो कि मुझे अपने अपलाइन, मेरे आस-पास करीब सराउंडिंग लोगों से मिलती है, वो करेज मेरे में है, तो फिर कोई भी कर सकता है इस दुनिया में। थैंक यू टू एवरीवन। Thank you so much. Thank you, Pratima. What a journey. Thank you. Thank you. Amazing, amazing journey. Uh, I would request our guest to ask your questions here. Yes, here. So मैं देख पा रहा हूँ कई सारे कमेंट्स है आपके लिए यहाँ पे. So मेरा एक क्वेश्चन है फॉर यू. Pratima, if you can hear me. Yes, sir. Yes. And I request all uh, attendees to please mute yourself. Yes, please mute yourself. Okay, so Pratima, being a youngster and आपने बहुत कम समय में न्यूसाना हैव अचीव दिस लेवल, ये मुकाम आपने हासिल किया है डायरेक्टर लेवल. सो हाउ वुड यू इंस्पायर द यंगस्टर्स कि उनको सेलिंग अपॉर्चुनिटी, yeah, and especially in USANA, how would you attract them? Sir, actually, I'd like to give a message to youngsters that अगर मैं पढ़ाई के साथ आई एम एक्चुअली परसुइंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग राइट नाउ, और मैं सेकेंड ईयर में हूँ सिविल इंजीनियरिंग के. आई हैव जस्ट गिवन माय थर्ड सेमेस्टर एग्जाम, एंड मेरा एग्जाम अभी 25 जनवरी को ख़त्म हुआ है, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम. एंड इफ विद स्टडीज अगर मैं अगर कर सकती हूँ, इट इज़ दैट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये जो इंडस्ट्री है, इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग ऑन द प्लेनेट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में योर
कहा जाता है ना कि हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं यहाँ पे। एक सराउंडिंग होता है हमारा जहाँ पे कि हम लोगों के ओवरऑल हेल्थ पे फ़ोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी को मतलब कोई गुस्से से या फिर किसी को मार-मुर के या फिर किसी से चोरी-चारी करके पैसा नहीं लाते हैं। यहाँ पे ओवरऑल हेल्थ पे फ़ोकस किया जाता है। कैसे एक आदमी का हर एक चीज़ ठीक से रहेगा, कैसे वो मतलब सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएगा, हम उस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं। विद प्लस उसके साथ उसकी इनकम को भी देखते हैं। ओवरऑल जितना भी मतलब उसका वो अपग्रेड होना चाहता है, जहाँ से भी, जिस भी मुकाम से उसे हेल्प चाहिए रहता है, उस चीज़ पे हेल्प होता है। तो व्हाई डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री? इट इज़ बिकॉज़ क्योंकि मैंने जब देखा मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरा पढ़ाई अपनी जगह है क्योंकि आई एम ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई एम एसोसिएटेड विद मैथ्स। मुझे अगर कोई मतलब नॉर्मली आता है कि यू आर एसोसिएटेड अ लॉट, आप इतना अच्छे से बायोलॉजी है, मैं अपना पता है उसे मैं अपना यूटिलाइज़ करती हूँ या तो जो भी चीज़ें नई है, जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, मैं क्या चीज़ देने जा रही हूँ, कौन से आदमी को क्या चीज़ें चाहिए, कैसे एक आदमी के पास ट्रस्ट बिल्ड करना है, कैसे क्या प्रॉब्लम से सॉल्व किया जाए, मैं सारी चीज़ों को स्टडी करती हूँ और उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। तो उससे होता क्या है कि मैं मेनली फ़ोकस करती हूँ कंज़्यूमर बिल्डिंग पे। और अगर मैं यूथ को कहना चाहूँ तो योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ बोला जाता है। हम जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं वो हमारा नेट वर्थ डिसाइड करता है। तो अगर हम अपना नेटवर्क इतना अच्छा रखेंगे और एक चीज़ भी है कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन। हम 5 लोग हमारे आपकी आवाज़ वैसे स्टिल होगा। हम वैसे ही बनने वाले हैं। हमारे आस-पास के 5 लोग महाज्ञानी हैं, आप 6वें महाज्ञानी बनेंगे। हमारे आस-पास के लोग मिलियनेयर, बिलियनेयर्स हैं, आप 6वें बिलियनेयर, मिलियनेयर बनने वाले हैं। तो अभी अगर एट एट दिस वेरी वेरी एज अगर मैं कहूँ तो दिस इज़ द राइट एज कि हम अपना एसोसिएशन सुधार लें। क्योंकि आगे चल के लोग बहुत सारी गलत-गलत एसोसिएशन में पड़ सकते हैं, लेकिन व्हाई टू चूज़ अ बैड वन व्हेन यू हैव अ गुड वन? हम अपने अच्छे एसोसिएशन में जब रहते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट, हमारी ग्रोथ उतने ही तरीके से ना मल्टीप्लाई होती जाती है और हमारा ग्रोथ जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई वो हमारे लिए अच्छा है। तो अगर मैं कहने को चाहूँ तो पढ़ाई के साथ-साथ ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में मैं आज हूँ और जिस तरीके से मेरा अपग्रेडेशन चल रहा है, जिस तरीके से मैं क्वालिफ़ाई कर रही हूँ, जिस तरीके से मेरा बिज़नेस में मैं बिज़नेस मतलब कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती है और लगे रहने के लिए ताकि जब तक मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट होता है, आई विल बी अ सिल्वर डायरेक्टर और अ गोल्ड डायरेक्टर वेरी सून। You will, Pratima. Hats off. Yeah. And really, all the best. And wishing you a great career with USANA. 2520. All the best, Pratima. All the best. Thank you, sir. Hats off. All the best. So, I would request everyone to give a big clap to all our speakers. आज जितने भी speakers थे हमारे, Vivi ji and Itika ji and Fatima. So all the best with Yusana. And मैं चाहूंगा क्योंकि ये जो क्लोजिंग है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इंडिया एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस ना, क्योंकि हम इसका बेस्ट हम जो हमारा अपॉर्चुनिटी है ये हम शेयर करें एंड हमारा जो विजन है वो हम एकम्प्लिश करें, जो कि टू क्रिएट द हेल्थिएस्ट फैमिली ऑन अर्थ। या एंड ये जो अभी प्रतिमा ने एक रैंक का बारे में बताया, दैट इज डायरेक्टर, है ना। सो मैं बोलना चाहूंगा कि बेनिफिट्स क्या है, एक डायरेक्टर अगर आप बनते तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप क्वालिफाई करते हैं फॉर आवर नेशनल ट्रिप, दैट इज गोवा और केरला या जितने भी आने वाले हैं, या यू कैन बिकम क्वालिफाइड फॉर आवर नेशनल ट्रिप। ऑल्सो यू कैन क्वालिफाई फॉर 20 डेज वेट लॉस चैलेंज, जो कि है हमारे लाइक विथ मनप्रीत वसन जी, जो कि हमारे न्यूट्रिशनिस्ट है एंड हेल्थ कोच है। एंड यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई फॉर डायरेक्टर्स रन। यस, अगर आप डायरेक्टर बनते हो इवन फॉर दिस वीक यू कैन क्वालिफाई फॉर डायरेक्टर रन। यू कैन बिकम क्वालिफाई फॉर डायरेक्टर बोनस, आपका जब मैक्स आउट करते हो। You can also become qualify for director's pack. Yes, and you can also qualify for free sample। आपको free sample मिलता है with like जो भी हमारे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है उसका every free sample आपको मिलता है। So these are the benefits of becoming a director with USANA। So मैं चाहूंगा कि आप जब भी अपने मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में इस स्लाइड का यूज करें। तो
डायरेक्टर बनने के फायदे इन यूसाना, एंड यू शुड हाईलाइट this point. Yes, and this is the base level actually in USANA, I would say. Yeah, and Kerala of course. So Kerala के लिए जितने भी लोग कोशिश कर रहे, especially for the third night, I would say. So अभी 1 week की बाकी है, even not also like 1 week की, हम 1st Feb को हम ये क्लोज कर रहे हैं. So जितने भी ऑन ट्रैक है, मैं चाहूंगा कि वो क्वालिफाई फॉर केरला एंड ऑल्सो फॉर डायरेक्टर रन, एंड सी यू एट द टॉप. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. अगर कुछ सवाल है आपका, सो देन यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी. सो आप मुझे पूछ सकते हो. या एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक. थैंक यू सो मच. Many years ago, there was a man who felt fire in his soul, and through one man's vision, we feel the difference deep in our bones, and we want everyone to know we are USANA. We're changing the world. We live life and love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. Year after year we grew, going forth with the power of two.